everyone, this is Virtual Learning Network. This is session number 1, Management Control System. Topics to be covered are basic concept, nature and purpose of management control, component elements of control system, planning, management and reporting system, hierarchy of control, organization structure and control process, corporates, culture, rewards, communication and integration in formal management control. First of all, we will learn about the basic concept. Before going to this, I will want to give you a brief discussion which we are going to discuss in this particular session. So the main focus of this particular session is on the nature and purpose of management control system, element of management control system, interlinking between strategic thinking, management control and the operational control. During the recent years, a number of few management techniques have merged. These include total quality management, active based costing, enterprise resource planning, total knowledge management, etc. So in this particular session, we provide a outline on linkage of these management techniques विथ मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम. तो बेसिकली हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम होता कैसे है, इसमें हमारे पास कौन कौन से पर्टिकुलर बेसिक कॉन्सेप्ट आते हैं. सो मूविंग टू अवर फर्स्ट स्लाइड गिव अवर बेसिक कंट्रोल्स, बेसिक कॉन्सेप्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द body temperature is maintained at, as we know, our body temperature is maintained at its 98.6 Fahrenheit through a self-regulating mechanism. In a healthy body, this control process automatically because system corrects the derivation through self-regulation. Only when the derivation are very high, that is high fever, and external intervention is the form of medicine is required to bring the temperature back to the normal. The term of complexity control mechanism, the control system of body temperature is more complex as compared to thermostat. The driving system, बेसिकली हम लोग इसमें दिखा रहे हैं कि द कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोल कैन बी एक्सप्लेन. जो मेरे पास कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोल है हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं एक थर्मोसेट के एग्जांपल से, एक जो हमारे पास बॉडी ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर के एग्जांपल से, ड्राइविंग सिस्टम ऑफ मोटर बाइक के एग्जांपल से. देखिए जैसे हमारे पास ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है जो बेसिकली 98.6 फ़ारेनहाइट पे होता है एक नॉर्मल पर्सन का. जब उसको हाई फीवर हो जाता है तो या फिर कोई भी अनयूजुअल कंडीशन आ जाती है हमें उसको मेंटेन करके रखना पड़ता है. हियर इज एन अनदर एग्जांपल ऑफ ड्राइविंग सिस्टम. सो द ड्राइविंग सिस्टम ऑफ ऑटोमोबाइल्स प्रोवाइड अस ABC of main machine control mechanism wherein ABC implies accelerator, brake and clutch. It is the control over these three components that gives the driver control over the vehicle. Changing gears accordingly to the road condition is essential to control system. So this metaphor of control has interesting lesson for management control in the organization because organization are main machine system. देखिए ये मेरे पास जो है मेन मशीन सिस्टम का एग्जांपल है. जैसे इसमें एक एग्जांपल दिया है उसी एग्जांपल को हम लोग यहाँ पे फॉलो करते हैं. हमारे मैनेजमेंट के अंदर जो कंट्रोल सिस्टम है कहाँ पे हमारे पास बेसिकली यूटिलाइज होता है. सबसे पहले मेरे पास मेटाफोर ऑफ कंट्रोल. सबसे पहला है थर्मोस्टेट, इंजीनियरिंग मॉडल ऑफ कंट्रोल, बॉडी टेम्परेचर, नेचर मॉडल ऑफ कंट्रोल, ड्राइविंग सिस्टम, मैन मशीन मॉडल ऑफ कंट्रोल, ट्रैफिक यस नो कंट्रोल मॉडल. सो बेसिकली क्या है? So control system is defined as a group of components functioning together in coordination to perform the function. This function may be control of physical variables such as speed, voltage, temperature, pressure, position etc. देखिए अब हमने इसमें बात
ये थी कंट्रोल सिस्टम की। हमारे चैप्टर भी क्या है, कंट्रोल सिस्टम का। तो कंट्रोल सिस्टम को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, एक कंपोनेंट है जो फंक्शन करता है टुगेदर इन द कोऑर्डिनेशन टू परफॉर्म अ फंक्शन। सच फंक्शन में भी कंट्रोल ऑफ फिजिकल वेरिएबल फंक्शन मेरे पास कैसे भी हो सकते हैं, कोई फिजिकल वेरिएबल हो सकता है, ऐसा स्पीड, वोल्टेज, टेम्परेचर, कुछ भी हो सकता है। तो इन अ ओपन लूप सिस्टम known as non-feedback system, there is a provision within the system for the supervision of output, and no mechanism is provided to correct the system behavior for any lack of proper performance system. Such system are represented, हमारे पास सच सिस्टम है उनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इनपुट वेरिएबल, ट्रांसफर फंक्शन, आउटपुट वेरिएबल। नाउ वी विल मूव टू द फ्रेमवर्क ऑफ कंट्रोल। वट इज़ द फ्रेमवर्क फॉर कंट्रोल। कंट्रोल का बेसिकली मेरे पास फ्रेमवर्क कैसा रहता है। सो अ मेजरिंग डिवाइस, मेरे पास क्या, देखिए, अ मेजरिंग डिवाइस विच डिटेक्ट्स द नेचुरल स्टेट ऑफ वेरिएबल अंडर कंट्रोल, समटाइम कॉल्ड डिटेक्टर। टू, an assessing device which usually by comparison show the difference or gap between the actual state and the desired state of the variable under control, sometimes called selector. 3, an altering of or correction device which carries out necessary alteration or correction in the actual state of variable to achieve the desired state, sometimes called effector. Beside these three, namely detector, selector, effector, the control system also includes the means of communicating information such as directives, guidelines, feedback, etc. among these elements. सो बेसिकली देखिए हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले जो मेरे पास मेजरिंग डिवाइस की हम लोग बात करते हैं वो डिटेक्टर था। जैसा नेम ने सजेस्ट किया वो वैसा ही काम करेगा। डिटेक्टर क्या होगा, एक्चुअल स्टेट को डिटेक्ट करेगा। उसके बाद असेसिंग डिवाइस क्या करेगा, उसको असेस करेगा। थर्ड वन है हमारे पास ऑल्टरिंग और करेक्टिंग डिवाइस। ऑल्टर क्या करता है, मेरे पास ऑलरेडी कुछ एग्जिस्टिंग है, उसमें हमें कुछ चेंजिंग करते हैं जिसको हम लोग ऑल्टर कह दिया, और उसको हमने एक नेम दिया, डेट इज़ अवर इफेक्टर। इन दिस फिगर सिमिलर इज शोन हेयर, जो हमारे पास फिगर में भी सिमिलर थिंग शोन की गई है। आइडेंटिफाई बीइंग कंट्रोल्ड, देन डिटेक्टर, अफेक्टर एंड सेलेक्टर। तो इससे पूरा हमारे पास क्या बनेगा, इसका कॉम्बिनेशन से एलिमेंट ऑफ कंट्रोल सिस्टम हमारे पास बन जाते हैं। सो मूविंग टू अवर नेक्स्ट स्लाइड, हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। So next we are going to read about nature and purpose of management control. So management control का हम लोग पर्पस पढ़ेंगे और इसका नेचर पढ़ेंगे। So management control is the process by which managers ensure that the resources are obtained and used efficiently in the completion of the organization goals. देखिए मैनेजमेंट कंट्रोल क्या होता है, एक प्रोसेस है जिससे हमारी मैनेजमेंट है कंट्रोल लगाती है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो एफिशिएंटली यूज़ हो रहे हैं, वो एफिशिएंटली यूज़ हो रहे हैं इन अवर गोल, कि हमारे पास जो गोल्स अचीव करना चाहते हैं उनमें भी वो आसानी से हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। सो मैनेजमेंट कंट्रोल इज़ द प्रोसेस बाय विच मैनेजर्स इन्फ्लुएंस। देखिए मैनेजमेंट कंट्रोल जैसे नेम ने सजेस्ट किया, तो हमारे जो मैनेजर हैं उससे इन्फ्लुएंस करते हैं अदर मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू इम्प्लीमेंट द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजीज, कि आप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट कीजिए। सो मूविंग टू अवर नेक्स्ट स्लाइड, हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। सो दे फर्दर स्टेट, हमारे पास क्या क्या स्टेट करते हैं, मैनेजमेंट कंट्रोल इन्वॉल्व्स अ वैरायटी ऑफ द एक्टिविटीज़। सबसे पहले हम लोग कोई भी काम करने लगते हैं तो हम उसकी प्लानिंग करते हैं। आफ्टर प्लानिंग एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, इवेल्युएशन होना चाहिए, डिसाइडिंग एंड इन्फ्लुएंस होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लानिंग के अंदर क्या कवर होगा, व्हाट ऑर्गेनाइजेशन शुड डू। Coordinating means the activities of the several parts of the organization, communicating information, evaluating information, deciding what if any action should be taken,
influencing people to change the behavior. So element of the management control process is what the ऑर्गेनाइजेशन शुड डू, वो उसका विजनिंग हो जाएगा एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है, कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन, इवेल्युएटिंग इंफॉर्मेशन, डिसाइडिंग इन एक्शन टू बी टेकन, डिसीजन मेकिंग के अंदर आ जाएगा। उसके बाद इन्फ्लुएंस पीपल टू चेंज देयर बिहेवियर कम्स इन लीडिंग। एलिमेंट ऑफ द ब्रॉड एरिया ऑफ मैनेजमेंट की जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें आएगा हमारे पास प्रोडक्ट डेवलपमेंट, operations, marketing and sales, and finance. So it may be observed that in this classification the focus is on function of basic management such as product development, operations, marketing, finance, etc. Resources via people, money, machine, information. Third one is processes via objective setting, strategy, formulation and control. So the merchant further states that in this framework the term control separates the management function along a process continuum involving object setting, strategy, formulation and control. So देखिए हमारे पास क्या है यहाँ पे एक्शन कंट्रोल है, ये क्या है मेरे पास मर्चेंट जो है उसने इसको फर्दर डिवाइड किया इन थ्री पोर्शन। वन इज एक्शन कंट्रोल, अनदर इज पर्सनल एंड कल्चर कंट्रोल, देन रिजल्ट कंट्रोल। तो सबसे पहले हम लोग एक्शन परफॉर्मेंस की बात करते हैं, व्हाट इज दैट। सो एक्शन कंट्रोल इन्वॉल्व्स ensuring that employee perform certain action known to be beneficial to the organization। जैसे नेम ने सजेस्ट किया एक्शन कंट्रोल क्या करेगा, इन्वॉल्व एंश्योरिंग द पीपल एम्प्लॉयज परफॉर्म सर्टेन एक्शन नोन टू द, वो जो हमारे पास एम्प्लॉय हैं सर्टेन एक्शन करें जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल हों और हार्मफुल हों। रिजल्ट कंट्रोल फोकस ऑन द रिजल्ट, रिजल्ट कंट्रोल क्या करेगा, पर्टिकुलर उसका रिजल्ट क्या आ रहा है। पर्सनल एंड कल्चर कंट्रोल ऑन टेकिंग स्टेप्स बट एंश्योर that employees control their own behavior or control each other's behavior. Such control aim at helping employee do a good job are based upon employees' natural technique to control themselves. These control self-motivating that could include self-control, intrinsic motivation, ethics, trust, and transparency, etc. So, component and event of control system. कौन कौन से हमारे पास कंट्रोल सिस्टम के इवेंट होते हैं, कौन कौन से हमारे पास इसमें कंट्रोल होते हैं। प्लानिंग, मैनेजमेंट, रिपोर्टिंग सिस्टम, हायरार्की ऑफ कंट्रोल। नेक्स्ट वन हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, बेसिकली हमारे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। थर्ड वन हम लोग बात करते हैं रिवार्ड्स, कम्युनिकेशन एंड इंटीग्रेशन इन फॉर्मल मैनेजमेंट कंट्रोल, दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट दीज। हम लोगों ने ना इसके बारे में पहले भी स्टडी किया था। ये हमारे पास बेसिकली हायरार्की कंट्रोल के अंदर जो हमारे पास एक कंपोनेंट ऑफ कंट्रोल सिस्टम के अंदर हम लोग इंक्लूड करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी दिस वन बाय वन। हम इसको वन बाय वन स्टडी करते हैं। प्लानिंग, मैनेजमेंट एंड रिपोर्टिंग सिस्टम। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं व्हाट इज प्लानिंग, मैनेजमेंट एंड रिपोर्टिंग सिस्टम। सो इट सजेस्ट दैट strategic intent is an environment of strategic uncertainties created by the chance in the technology, consumer preferences, competitors, strategies, etc. Strategies input from the top management are incorporated in the budgeting exercise in the planning of the activity of the year। देखिए हमारे पास क्या है, प्लानिंग, मैनेजमेंट एंड रिपोर्टिंग सिस्टम। जो नेम ने सजेस्ट किया वैसा ही कुछ काम करेगा। प्लानिंग इंक्लूड द प्रोजेक्ट, आइडिया, प्रोग्राम एंड एक्टिविटी, इन सब के प्लानिंग को इंक्लूड करेगा। उसके बाद मेजरमेंट प्रोसेस इन्वॉल्व, जो इसकी मेजरमेंट प्रोसेस है वो इन्वॉल्व करेगी। क्या द एक्चुअल परफॉर्मेंस हो रही है, नहीं हो रही, टारगेट अचीव हो रहे हैं, नहीं हो रहे। रिपोर्टिंग इन्वॉल्व अचीवमेंट रिपोर्टिंग बाय कंपेयरिंग द
एक्चुअल अचीवमेंट विद द डिज़ायर अचीवमेंट। रिपोर्टिंग इन्वॉल्व क्या करेगा, अभी एक्चुअल हम लोगों ने क्या सोचा था और हमारे पास टारगेट कहाँ तक अचीव हुए हैं, जो उनके बीच में कंपैरिजन होगा वो रिपोर्टिंग इन्वॉल्व करेगा। सो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, हायरार्की ऑफ द कंट्रोल। हम लोग हायरार्की ऑफ कंट्रोल की बात करते हैं, उसमें हमारे पास कैसी हायरार्की है। हायरार्की बेसिकली स्टैंड फॉर हमें टॉप टू बॉटम किस स्ट्रक्चर में उसको फॉलो करना है। सो सबसे पहले हमारे पास स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, जो हमारे पास ओल्ड फ्रेमवर्क था, न्यू फ्रेमवर्क से हमने प्लानिंग की जगह फॉर्मुलेशन को रिप्लेस किया। सेकेंड, मैनेजमेंट कंट्रोल। थर्ड वन इज ऑपरेशनल कंट्रोल, दैट इज रिप्लेस्ड विद टास्क कंट्रोल इन न्यू फ्रेमवर्क। सो बेसिकली ये क्या शो करते हैं, सो व्हाट्स द आइडिया बिटवीन दिस। So the hierarchy of control represent by the strategy, management, control and the task control। वो हमारे पास किससे, मैनेजमेंट कंट्रोल, टास्क कंट्रोल और स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन से रिप्रेजेंट करते हैं उसको। मैनेजमेंट कंट्रोल एंड स्ट्रेटजिक कंट्रोल। मूव टू नेक्स्ट स्लाइड शोज द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड द कंट्रोल प्रोसेस। सो organizational structure is an essential the arrangement of the various subunits, departments and responsibilities centers with defined authority and responsibility. For a proper understanding of the control process, it is important to understand the nature of the organization structure। देखिए सबसे पहले कंट्रोल प्रोसेस से पढ़ने के पहले हम लोगों को ना एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है वो भी अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए। बेसिकली हमारे ऑर्गेनाइजेशन किस स्ट्रक्चर पे चलती है, हायरार्की स्ट्रक्चर लेके चलती है, नेटवर्क स्ट्रक्चर लेके चलती है, सबसे पहले हमें उसका स्ट्रक्चर को भी पता होना चाहिए। तो उसके कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, इसके स्ट्रक्चर रहेंगे हमारे पास फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर एंड नेटवर्क स्ट्रक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज फंक्शनल स्ट्रक्चर। सबसे पहला क्वेश्चन जो अराइज होता है कि फंक्शनल स्ट्रक्चर होते क्या है। तो द फंक्शनल स्ट्रक्चर इन द फंक्शनल स्ट्रक्चर एन ऑर्गेनाइजेशन इज स्ट्रक्चर्ड ऑन द बेसिस ऑफ critical functions such as production, marketing, finance, HRD, etc. with each manager having responsibility for their respective function. Integration across the function is ensured by the top management through the formal and informal meeting and control। देखिए फंक्शनल स्टोर में क्या होगा, स्ट्रक्चर में क्या होगा, जितने भी मेरे पास स्ट्रक्चर हैं बेसिकली प्रोडक्शन वालों की, मार्केटिंग वालों का, फाइनेंस वालों का, HRD वालों का, सबका हमारे पास अलग अलग डिपार्टमेंट है। सबको उनके डिपार्टमेंट हेड जो है वही चलाते हैं और कभी भी इनको आपस में कुछ भी इनकॉर्पोरेट करना है तो उसके लिए हमारे पास टॉप मैनेजमेंट ही रिस्पॉन्सिबल रहती है। सेकेंड वन इज डिविजनल स्ट्रक्चर। सो in divisional structure an organization is structured on the basis of product line or group of product line that constitute the division. The divisional manager is responsible for all the functions related to the division. Integration across the division is ensured by the top management by integrating division performance control system. Third one is our matrix structure. So matrix organization is structured along two dimensions via according to the function, according to the project product। जो मेरे पास मैट्रिक्स सॉल्यूशन होता है उसमें मेरे पास फंक्शन प्लस हम लोग प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट को देख के चलते हैं। Such structure are quite common in case of project management organization, R&D institute, wherein a person is simultaneously responsible for two bosses, that is project manager and the functional manager. In such organization, integration is achieved through task focus and project team। Next one is network structure। Organization is structured on the basis of network requirements। Organization like a fresh net wherein various departments are undergoverned and are highly interdependent। ये मेरे पास कहाँ पे होते हैं, जहाँ पे मेरे पास सारे के सारे डिपेंड जो मेरे पास नेटवर्क है वो बेसिकली इंटरडिपेंडेंट होंगे, वो एक नेटवर्क में वर्क करेंगे तो उनका नेटवर्क स्ट्रक्चर होगा। नाउ
हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड इज रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। तो बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर को कैसा होता है वो हम लोग रीड करते हैं। सो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड द कंट्रोल सिस्टम आर लिंक्ड। ये मेरे पास जो कंट्रोल सिस्टम होता है और ऑर्गेनाइजेशन सेंटर है वो मेरे पास बहुत ज़्यादा लिंक्ड होते हैं। सो an idea of responsibility center. A responsibility center is simply an organizational unit headed by the responsible manager. The principal type of the financial responsibility center are cost center, revenue center, profit center and investment center. जो हम लोग प्रॉफिट सेंटर की बात करते हैं या फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स की बात करेंगे तो हमारे पास कौन कौन सी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी। हर एक सेंटर की पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। हियर इज एन एग्जांपल ऑफ द फाइनेंशियल सेंटर। जो हमारे पास फाइनेंशियल सेंटर होगा उसकी कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी। वन इज अवर कोस्ट सेंटर, सेकेंड अवर रेवेन्यू सेंटर, देन प्रॉफिट सेंटर, देन इन्वेस्टमेंट सेंटर। सो कॉर्पोरेट culture. Now we move to the corporate culture. Corporate culture consists of shared value, common perception and common decision premises applied by the organization particular to the activities and the problem of organization. Corporate structure, corporate कल्चर कौन सा होगा जहाँ पे मेरे पास शेयर्ड वैल्यूज़ होंगी, हर कोई अपने कॉमन, हम लोग कॉमन परसेप्शन, कॉमन डिसीजन और कॉमन प्रीमिसेस के अंदर ही वर्क करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पोरेट कल्चर। सो इन असेंस कॉर्पोरेट कल्चर इज अ integrating mechanism for integrating vision, mission and action aspect of managerial process. Vision and mission are based on shared value and common perception. Action are based upon common decision premises applied to the activity. So common beliefs and values about the activity and the problem of the business greatly facilitate control by internalizing in individual key decision premises, developing a sense of group loyalty, reducing dissension and friction. Moving to our next slide. Next slide is rewards and compensation. So what is rewards and compensation? So rewards could be मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी इन नेचर। जो मेरे पास रिवार्ड्स हो सकते हैं वो बाय नेचर मेरे पास मॉनिटरी भी हो सकते हैं, मनी रिलेटेड भी हो सकते हैं और नॉन मनी रिलेटेड भी हो सकते हैं। मॉनिटरी रिवार्ड्स इंक्लूड सैलरी इंक्रीज। जो मॉनिटरी रिवार्ड होता है उसमें मेरे पास सैलरी इंक्रीज इंक्लूड हो सकती है। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्टिमम प्लान्स इंक्लूड कर सकते हैं। जब हम लोग नॉन मॉनिटरी की बात करते हैं रिवार्ड्स इंक्लूड रिकॉग्नाइजेशन, एंथेंस स्टेटस, इंक्रीज ऑटोनॉमी एंड एप्रिसिएशन। देखिए मेरे पास रिवार्ड्स और कंपनसेशन की जब हम लोग बात करते हैं बेसिकली वो दो टाइप से होंगे हमारे पास। वन इज़ अवर मनी रिलेटेड एंड अनदर इज़ अवर नॉन मनी रिलेटेड। जो मनी रिलेटेड होगा हमें किसी को रिवार्ड देना है तो हम उसकी सैलरी में इंक्रीज कर सकते हैं। जो मेरे पास नॉन मनी रिलेटेड होगा तो हम उसको एप्रिसिएशन दे सकते हैं, उसको प्रमोशन दे सकते हैं। सो दे आर द सेवरल थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। हम उसको मोटिवेट कर सकते हैं और मोटिवेशन के हमारे पास सेवरल थ्योरीज हैं। दिस थ्योरी प्रोवाइड insight as to what motivates individual. At the root of the most of these theorems is an idea of reward and positive reinforcement. There has been a shift from the punishment oriented approach to control to the reward oriented approach as the basis of motivate people. So team building and team approaches are essential for the success of any organization, hence the reward should be team based. देखिए हमें इसमें बेसिकली बताया है जो हमारे पास रिवॉर्ड होगा वो कैसे हो सकता है। जो हमारे पास रिवॉर्ड सपोज करो कि हम लोग अप्रिशिएट करना चाहते हैं
तो एप्रिसिएशन शुड बी ऑन टीम बेस्ड। हम एक इंडिविजुअल पर्सन को अप्रिशिएट करने की बजाय हमें उसकी पूरी टीम को अप्रिशिएट करना चाहिए। लाइक सो एंड सो कंपनी इज़ वेरी गुड इन दिस प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट में बहुत अच्छी थी, उन्होंने बहुत अच्छे से इसको हैंडल किया, वो आप बहुत अच्छे से इसको आगे भी करते रहेंगे। दैट ओल्ड वर्ड्स मोटिवेट अ होल ग्रुप, वो मेरे पास क्या करेगा, होल ग्रुप को मोटिवेट करेगा। नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कम्युनिकेशन एंड इंटीग्रेशन। कम्युनिकेशन इज एट द रूट ऑफ, जो मेरे पास कम्युनिकेशन है इज द रूट ऑफ द कंट्रोल सिस्टम। कम्युनिकेशन हेल्प्स इन प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑफ द एक्टिविटी अक्रॉस द फंक्शन। देखो मेरे पास कहाँ पे कम्युनिकेट नहीं होगा तो हम लोग एक टीम की तरह, एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह वर्क ही नहीं कर पाएंगे। तो जो कम्युनिकेशन है इट इज़ वेरी रिक्वायर्ड, और मेरे पास बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, वेरी मच नेसेसरी है। सो इट ensure that organization member moves in the direction of shared values and the goals of the organization. It ensures, ये हमें ensure करता है, goals converges between the individual goal and the organizational goal. There are the several management communication vehicles, जो हमारे पास मैनेजमेंट कम्युनिकेशन व्हीकल्स काफ़ी सारे हो सकते हैं। लाइक वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कॉन्फ्रेंस है हमारे पास, वर्कशॉप है, ऑफिशियल न्यूज़ लेटर है, मंथली रिपोर्ट है, जिनसे उन्हें एक दूसरे के बारे में पता रखता है, वो कम्युनिकेट होते रहे, अवेयर होते रहे एक दूसरे के बारे में। नाउ वी टॉक अबाउट इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेशन क्या है हमारे पास? So integration is the various activities and process is not only achieved through communication article but also through another formal mechanism such as committees to address issue at different level. Committees are constituted to achieve integration across the organization. हम लोग कमेटी बना देते हैं इफ वी वांट टू इंटीग्रेट अवर ऑर्गेनाइजेशन। हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन को इंटीग्रेट करना है तो हम उसमें डिफरेंट टाइप की कम्युनिटी बना के, कमेटी बना के वर्कआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अवर इनफॉर्मल मैनेजमेंट कंट्रोल। सो इनफॉर्मल मैनेजमेंट control system which has been the focus of our decision so far. Much of the management control involves informal communication and interaction. Formal इनफॉर्मल मैनेजमेंट कंट्रोल अकर्स थ्रू मीटिंग। जो मेरे पास इनफॉर्मल, जो मेरे पास मैनेजमेंट कंट्रोल होते हैं वो हम लोग मीटिंग से, कन्वर्सेशन से, साइट विजिट, मेलिंग से जो हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, दैट इज़ अवर इनफॉर्मल मैनेजमेंट कंट्रोल। Structure meeting with unstructured agenda, which means that the time and the venue of the meeting is fixed. देखिए मेरे पास कोई एक मीटिंग है, उसका एजेंडा जो फिक्स्ड है, इट मीन्स वो हमारे पास बहुत अच्छी जाने वाली है। इफ़ वी डोंट नो द एजेंडा ऑफ द पर्टिकुलर मीटिंग, हमें एजेंडा ही नहीं पता, तो वी कांट डू वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर मीटिंग, हम उसमें कोई मीटिंग भी नहीं कर पाएंगे। न्यू मैनेजमेंट टेक्निक फॉर मैनेजमेंट कंट्रोल। तो कौन कौन से हमारे पास न्यू मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं? फर्स्ट वन इज़ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। जस्ट इन टाइम, देखिए, ब्रांच मार्केटिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, स्पीड क्वालिटी कॉस्टिंग। सो बेसिकली व्हाट दीज आर, हम इनको रीड करना चाहें तो ये बेसिकली हमारे पास होते क्या हैं, इनका पर्टिकुलर फंक्शन क्या होता है, हाउ इट वर्क्स, हमारे पास कैसे वर्क करती हैं, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन अवर फर्दर स्लाइड्स। इंटीग्रेटिंग PQM and MCS. The fundamental idea of PQM is a PDCA cycle, stand for plan, drop, check and act. This idea has been extensively applied to the field of quality improvement. The focus of this idea was the total quality and to gain competitive advantage through the total quality approach. Moving to our next slide, JIT. So basically just in time, JIT stand for just in time। तो basically क्या stand करता है JIT? Just in time entered the lexicon of the management both as a philosophy as well as technique.
more commonly known as JIT, just-in-time philosophy, aims at eliminating waste of reducing the time products spent in the productivity process and eliminating the time products spent on an activity that don't add value. ऐसे प्रोसेस के ऊपर हमें टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए जो हमें कुछ भी वैल्यू नहीं दे रहे हैं. सिंस होल्डिंग इन्वेंट्री इज एन नॉन value added activity in the JIT production system, aim is to have zero inventory. This essence of JIT philosophy and JIT production system is to eliminate waste and improve quality. In JIT system, an organization purchase material and the part of products component just when they are needed. Purchase materials and part and नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट स्लाइड. हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं. नेक्स्ट स्लाइड शोज JIT दैट इज़ जस्ट इन टाइम. एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि जस्ट इन टाइम हमारी मैनेजमेंट में कितना बेसिकली इम्पोर्टेंस रखता है. सो जस्ट इन टाइम फॉलोइंग द कंसिडरेशन इम्पॉर्टेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल रिडक्शन इन द प्रोडक्शन साइकिल टाइम. हम लोग जब टाइम पे होंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्शन साइकिल है उसमें रिडक्शन हो जाएगी. प्रोडक्शन फ्लो स्मूथिंग, जो मेरे पास प्रोडक्शन है वो स्मूथली चलने लगेगी. क्वालिटी जो है वो फोकस होगा. नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट दैट इज बेंच मेकिंग एंड NCS. बेसिकली व्हाट इज दिस? बेंच मेकिंग, एन आइडिया ऑफ बेंच मेकिंग वाज इनिशियली डेवलप्ड बाय एक्सो टू अचीव अ लीडरशिप. इसका बेसिकली मीनिंग क्या है? हमें लीडरशिप को अचीव करना है थ्रू क्वालिटी. क्वालिटी भी होनी चाहिए और हमारे पास लीडरशिप भी होनी चाहिए. सो द वर्ड बेंच मार्केटिंग इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड बेंच मार्क यूज्ड by surveyors to indicate a mark in the stone or metal or another durable materials family fixed in the ground. So moving to our next slide, क्या बेसिकली शो करती है? मेरे पास ब्रांच इज broadly classified into three categories. One is our competitive branching, another is our process branching, and the last one is our strategic branch marketing. Moving to our next slide, activity based costing ABC. Already we have studied about this ABC. हम already इसके बारे में पढ़ चुके हैं. So in the word activity is often used to incent the cost center, cost drive, incent of basic allocation that we have already studied. Speed, quality and the cost management control in the service industries. Speed refers to the speed with which the product is delivered. कितनी स्पीड से और कितनी एफिशिएंटली हमारा जो प्रोडक्ट है वो डिलीवर होना चाहिए. Ethics and management control system. Cybernetic model of instituting ethics program in organization include decide the desirable state, maintain the current state और हमारे last state क्या होगी. So general consideration in designing the management control system are top management responsibilities, organization specific goal, congruence, management motivation and fairness and objective. Now question for all of you people. At the very beginning my first question is how NCS and PQ are related. Second question is what is bench marketing. So today we will wind up our session here. We will discuss further in the next class. Till then, happy learning, happy learning.